نہ لوٹا ہے نہ لوٹے گا، وہاں پھیلا یاد کر لینا، وہاں پھیلا یاد کر لینا۔ ان الحمد والنعمت لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك۔ I invite the dedicated perfectionist, academician, the believer in modernizing teaching learning process. اس مقدس سفر کی برکت سے اللہ پاک نے حضرت کو کل کافی کے بعد حضرت نے اس خاص مقدس مبارک سفر کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی، ہمارے لیے بڑی خوشی ہوئی۔ تو میں حضرت کو میرے ساتھی محمد معظم حسین صاحب آپ لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے، آپ لوگوں کی تمام سہولتوں کا خیال رکھنے کے لیے اور آپ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کے لیے وقت سے پہلے وہاں پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو استقبال کرنے وہاں آئیں گے۔ مولانا بانی صاحب بھی وہاں کے آئیں گے انشاءاللہ۔ میں اگر وہ سعادت جو ریسیو کرنے کی ہوتی ہے وہ مس کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں نے اپنی ٹکٹ آج ہی 4 تاریخ کی بک کرائی ہے۔ میں آپ سے پہلے مدینہ منورہ پہنچوں گا انشاءاللہ، اور 5 تاریخ کو جب آپ مدینہ منورہ آئیں گے تو انشاءاللہ مدینہ منورہ میں آپ کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں کھڑا رہوں گا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات۔ اور خواتین حضرات کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک سفر پر جانے والوں کے سفر کو قبول فرمائے اور اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال اللہ تعالی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے بھائی اور بہنوں، سفر حج پر جانا اور عمرے پر جانا یہ اگرچہ مالداروں کا عمل ہے، مالدار حضرات پہ یہ فرض ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے تڑپتا ہر کوئی غریب بھی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بھیک مانگنے والا فقیر سامنے آ جائے اور آپ یہ ارادہ کر لیں کہ اس کو ہرگز بھیک نہیں دینی، صحت مند آدمی اور بھیک مانگتا کر رہا ہے، لیکن جب قریب آ کر وہ یوں کہتا ہے دے دو اللہ کے نام پر، اللہ تمہیں حج عمرہ نصیب فرمائے، تو آدمی اپنے ارادے کو تبدیل کر دیتا ہے، اس لیے کہ
पलट कर इसको ऐसी दुआ मिल रही है जिसमें अल्लाह ताला के घर का दीदार है। बहरहाल अल्लाह पाक ने आपका इंतखाब फरमाया। मुगल बादशाहों ने कई सौ साल हुकूमत इस मुल्क पर की, लेकिन एक को भी हज उम्रे की सादत नसीब न हुई, एक को भी हज उम्रे की सादत नसीब न हुई। और अल्लाह पाक ने आपको ये सादत नसीब फरमाई, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए। बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आज आपके सामने पेश करता है, इसलिए कि आप दिन भर के थके हुए हैं, रात भर फिर आपको सफर करना है, इसलिए टू द पॉइंट पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप सुने और दिल के कानों से सुने। जब आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं, तो रास्ते में एक तो अपने दिल को पाक साफ कर लें। मेरे प्यारे अल्लाह, कहाँ आपका हरम पाक का सफर और कहाँ मेरा वजूद नापाक। अल्लाह, आपने मुझे अपने घर पर बुलाया है, मेरे प्यारे अल्लाह आप मुझे माफ कर दीजिए। तो एक तो सच्ची तौबा कर लें। और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, सामान एयरलाइंस को देने के बाद और बोर्डिंग पास हाथ में आ जाने के बाद, इमिग्रेशन से एग्जिट पॉइंट से रुखसत होने के बाद जब फ्लाइट में बैठ जाएं, तो बैठने के बाद जब फ्लाइट चलेगा और जमीन को छोड़ेगा, ऊपर उठेगा, यहाँ तक कभी आप नियत न करें। हाँ, 2 रकात नफल अगर अल्लाह पाक ने आपको पाकी की हालत में रखा है, 2 रकात नफल आप पढ़ लें, लेकिन अभी आप उम्रे की नियत न करें। जब वो जहाज जमीन को छोड़ दे और चल पड़े और फजा में बुलंद हो जाए, अब मेरा इत्मीनान हो गया कि अब हम अपने मुल्क से निकल चुके और आगे बढ़ चुके हैं, तो अब नियत करने का मौका है। लेकिन नियत करने में आप इतनी बात समझ लें कि एरोस्टेज जो खाना लेकर आपके सामने आएंगी, खाने से पहले कुछ छोटी सी ट्रे लेकर आती है जिसमें चॉकलेट भी होती है कई दफ़ा, और एक छोटा सा पाउच होता है जिसमें खुशबू में डूबा हुआ एक रुमाल होता है। अगर एहराम वाला चाहे मर्द हो या औरत, उसको खोलने के बाद उसको यूज कर ले तो दोनों हाथ उस खुशबू में तरबतर हो जाते हैं, तो उस पर फिर एकदम आता है, यानी कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एहराम की खिलाफ वर्जी कर ली, खुशबू इस्तेमाल कर ली। लिहाजा बेहतर यह है कि वो जो खुशबू आगे क्या लिखा होता है उसको फ्रेशनर भी होता है, और टिश्यू पे उस पर लिखा रहता है, उसको इस्तेमाल न करें। उसे लेके चाहे अपने पाउच में रख लें, लेकिन उसको इस्तेमाल न करें। अब खाना आएगा, खाना खाने के बाद क्योंकि अमला थोड़ा होता है, पैसेंजर ज्यादा होते हैं, तो 1-1.5 घंटा उनको अपने वो बर्तन समेटने में लगते हैं। तो आप ये ना सोचें कि हमने खाना खा लिया, जब वो यहाँ से बर्तन उठा लेंगे तब हम नियत करेंगे, नहीं। जो आदमी थका हुआ हो, फ्लाइट का सफर कर रहा हो, पेट भर के खाना खाया हो, तो फिर वो डट के और जम के सोता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप रात का वक्त आप सो जाएं और मीकात से आगे बढ़ जाएं, जहां नियत के बगैर आगे बढ़ना जायज नहीं है। इसलिए आप बर्तन उठने का इंतजाम न करें, फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, पहले नियत करें, प्यारे अल्लाह उम्रे का एहराम बांधा है, कबूल फरमाइए और आसान फरमाइए, ये आपने नियत कर ली। और नियत के बाद फौरन 3 मरतबा लब्बैक पढ़ लें। नियत में और लब्बैक में फासला नहीं होना चाहिए, कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो, बात नहीं होना चाहिए, कलाम नहीं होना चाहिए। इधर नियत की, उधर 3 मरतबा तलबिया पढ़ लें। नियत अब आपका मीटर चालू हो गया उम्रे का। अब आप सो रहे हैं तो भी हाजी, जाग रहे हैं तो भी हाजी, खा रहे हैं तो भी हाजी, पी रहे हैं तो भी हाजी, चल रहे हैं तो भी हाजी, यहाँ तक के इस्तेंजा खाने में जा रहे हैं तो भी हाजी, क्योंकि आपने नियत करके अल्लाह के ज़ात के साथ एक मामला कर लिया कि मुझे उम्रा करना है। लिहाजा अब आप जल्दबाजी किसी काम में न करें। उम्रे की पाबंदियां अब आप पे लागू हो गई, मोटी मोटी उम्रे की पाबंदियां समझ लें। एक तो मस्तूरात अपना चेहरा खोल के रखेंगी, लेकिन इस तरह हिजाब से ढाक के रखेंगी कि चेहरे पे कपड़ा लगने न पाए। बहुत सारी माँ बहनें स्कार्फ पहनती हैं, तो स्कार्फ ये जो अबरू होती है, भावई होती है, यहाँ से बांधती हैं उसको, ये गलत तरीका है। बल्कि जहाँ से बालों की इब्तदा होती है वहां से इस तरह बांधना चाहिए। इसलिए कि इस हिस्से को तो खोलना था, इस हिस्से को खोलना था, और जिसको खोलना था उसने मजबूती से अपने पैक कर लिया, बांध लिया। अब अगर पूरी रात ये पूरे दिन वो ढका रहा तो एकदम देना पड़ेगा। लिहाजा उस हिस्से को खोल कर रखें, और जब आप फ्लाइट में बैठ जाए वहां अच्छी तरह से इन सब चीजों को संवार लें। मर्द हजरात का एहराम 2 सफेद चादरें हैं। असल एहराम तो नियत का नाम है, लेकिन नियत के दौरान मर्द हजरात सफेद 2 चादरें पहनेंगे, एक लुंगी की जगह, एक कुर्ते की जगह। न उसमें बनियान होगा, न अंडरवेयर होगा, न कोई सिलावा और कोई कपड़ा होगा, न सर पे टोपी होगी, न पैरों में
बंद जूते होंगे, बल्कि 2 पट्टी की स्लीपर चप्पल होंगी। ये मर्दों का एहराम है। औरतों का एहराम उनका वो शरीर लिबास जो अपने वतन में, अपने घर में वो पहना करती थी, वही नियत के साथ वो पहनेगी। अब एहराम की पाबंदियों में से एक पाबंदी ये है कि मतलब मियाँ बीवी बैठे हैं, अब हवाई जहाज में बैठे हुए हैं और दिल में खुशी है, अब वो आपस में एक दूसरे का हाथ दबाने लगे, प्यार मोहब्बत की बात करने लगे, ये हराम है। एहराम के अंदर ये चीज हराम है। लिहाजा मियाँ बीवी के रिश्ते को भूल जाए। भूलने का मतलब ये नहीं कि बीवी को कोई भूल जाए और बीवी शोहर को भूल जाए, नहीं, याद तो रखना है, लेकिन मियाँ बीवी के मोहब्बत के जज्बात उजागर ना हो जाए, इसका ख्याल रखना है, इसलिए कि यह हराम है हालत एहराम में। इसी तरह कोई खुशबू इस्तेमाल न करे। नहा तो सकते हैं लेकिन मैल उतार कर मल के ना नहाएं, न साबुन इस्तेमाल करें, न कोई खुशबू इस्तेमाल करें। एहराम की नियत करने के बाद न नाखून काटे, न बाल काटे। ये मोटी मोटी पाबंदियां हैं एहराम की। अब आप पहुंचेंगे जद्दा से अपना सामान कलेक्ट करेंगे। शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सूए खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, ये बहनें, ये भाई, ये बूढ़े और ये जवान, अल्लाह न जाने कितने दिनों से तड़प रहे होंगे, कितने दिनों से सोच रहे होंगे कभी तो कोई दिन आएगा जब हमने लब्बैक पुकारेंगे, हमने एहराम की चादरें ओढ़ेंगे, हमने अल्लाह के दरबार में जाएंगे, काबतुल्लाह का चक्कर लगाएंगे। अल्लाह वो दिन आ गया। ये अल्लाह ये कितने फरहा और सादा है। मेरे प्यारे अल्लाह, इनकी दुआओं में हमारा भी हिस्सा शामिल फरमा। अल्लाह के वो कितने प्यारे बंदे और बंदियां होती हैं जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक के आशिकाना तराने गुनगुनाते हुए आपके दरबार की तरफ जाते हैं कि अल्लाह ने इन बंदे और बंदियों का इंतखाब फरमाया। अल्लाह इसको बेहतरीन अंदाज से इनके उम्र को कबूल फरमा, सेहत सलामती के साथ ले जाइए कि अल्लाह नफ़े के साथ, बख्शिश के साथ, बरकतों के साथ, रहमतों के साथ इनको वापस लौटाइए। और अल्लाह इनके दिल के अंदर कि अल्लाह अपनी मोहब्बत का चराग रोशन फरमा दीजिए, ईमान को जला अता फरमा दीजिए, कि अल्लाह आमाल की तौफीक अता फरमा दीजिए। और दूसरे वो साथी अपनी बीवी, अपने शोहर को और अपने खर्चों को लेके जाते हैं, कई मरतबा जब अपने पार्टी महरूम न फरमाइए, अल्लाह किसी को महरूम न फरमाइए, अल्लाह किसी को महरूम न फरमाइए। अल्लाह के सामने खड़े होकर हाथ उठाकर आपसे भीख मांगे। मेरे प्यारे अल्लाह, ये पूरी उम्मत के लिए दुआएं करें, उस उम्मत में अल्लाह हमारा भी शुमार हो जाए। हाँ, इनके मक्का मुकर्रमा के स्टे को कबूल फरमा, मदीने पाक के सफ़र को कबूल फरमा, मदीने पाक की हाज़री को कबूल फरमा, मदीने पाक के दरबार में रहने को कबूल फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, बहुत अच्छे ईमान के साथ, अच्छी कैफियत के साथ इनको दोबारा अपने वतन लौटाइए। मेरे प्यारे अल्लाह, बार बार वहाँ उस दरबार में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाइए। जो इदारा इनके लिए इस सआदतमंद सफ़र पर सबब बना है, ज़रिया बना है, कि अल्लाह इस इदारे को दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की अता पूरी पूरी हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह, कितने जोड़े ऐसे हैं जो उम्रे पे जा रहे हैं, जवान जवान बच्चे और बच्चियां पीछे छोड़ के जा रहे हैं, कि अल्लाह वो उम्र को पहुंच चुके हैं, कि अल्लाह मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे, कि अल्लाह दरबार में जाकर अल्लाह उनके बच्चों के लिए बेहतरीन रिश्तों का इंतजाम फरमा दीजिए। साथ ही सुन्नत और शरीयत के मुताबिक बच्चों का फरीज़ा अदा करना आसान फरमा दीजिए। कि अल्लाह जिन मियाँ बीवियों के अंदर मोहब्बत नहीं है, कि अल्लाह उनमें सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। कि अल्लाह जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, गोद औलाद से खाली है, अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमा, बेटे भी अता फरमा, बेटी भी अता फरमा। कि अल्लाह वतन अजीज़ के हाल पर रहम फरमा, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा, हमें अच्छे हुक्मरां अता फरमा, इंसानियत के जज्बे से सरशार हुक्मरां अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, अरब और अजम में आग लगी हुई है, अल्लाह तरस खा लीजिए, अल्लाह तरस खा लीजिए। अल्लाह गज़ा के मोमिनों पर, अहले ईमान पर तरस खा लीजिए। अल्लाह, कितने शहीद हो चुके हैं, अल्लाह कितने मासूम बच्चे जिंदा रह गए, माँ और बाप आपके दरबार में पहुंच गए, अल्लाह कौन उनका भाली है। अल्लाह, और जो जिंदा है वो भी जख्मी है, अपने आज़ा से मालूम हो चुके हैं। मेरे प्यारे रब, वो किसको माँ कहें और किसको बाप कहें, किसको अपना कहें, किसको पराया कहें। हे मेरे प्यारे रब, वो इंसान जो जिस्म के एतबार से गोरे हैं और दिल के एतबार से काले हैं, और जिन्होंने हुकूक इंसानी का अंगोछा ओढ़ रखा है, जिन्होंने हुकूक इंसानी का अलग उठा रखा है और सारी दुनिया में ठेकेदार बने कर रहे हैं हुकूक इंसानी के, कि अल्लाह उनकी मत मारी गई है। कि अल्लाह वो अक़वाम मुत्तहिदा, कि अल्लाह जो इंसानों के मामलात पर नजर रखती है, लेकिन सब के सब शैतान मुत्तहिदा बन चुके हैं। ये अल्लाह,
उन तमाम के शर से उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मस्जिद अक्सा का अहले ईमान के हवाले फरमा, पूरे फ़लस्तीन को आज़ाद फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हम पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पूरी इंसानियत के लिए आपका खैर के फैसले फरमा। या अल्लाह, इंसानों को क्या हो गया, क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मेरे प्यारे अल्लाह, कर्ज खा लीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, इसी शहर में न जाने कितने लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कितने लोग भूखे प्यासे दिनों रात गुजारते हैं। या अल्लाह, हुजूर की उम्मत के फाकों को दूर फरमा। या अल्लाह, उनको राहत अता फरमा। या अल्लाह, स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले मासूम बच्चे, या अल्लाह, ऐसे भी होते हैं जब वो छुट्टियों के बाद स्कूलों में जाते हैं तो बच्चे पूछते हैं तुम कहाँ घूमने गए थे। तो यतीम बच्चा होता है, कई मरतबा कहता है मैं अपनी अम्मी के साथ परोला में काम पे जाता था, मेरी अम्मी किसी सेठ के यहाँ घर में झाड़ू पोछा लगाती थी, मैं भी अम्मी का हाथ बटाता था, मैं कहीं घूमने में जा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, जहाँ अमीर लोग अपने बच्चों को पिकनिक पर लेकर जाएं, आउटिंग पर लेकर जाएं, अल्लाह उनको इस बात की तौफीक दे दीजिए। वो ऐसे यतीम और गरीब और मिस्कीन बच्चों को भी उसका भी निज़ाम बनाएं, उनको भी सैर तफरीह पर लेकर जाएं, ताकि वापस आने के बाद अमीरों के बच्चे इन बच्चों को टॉर्चर न करें, इनके टूटे हुए दिलों को मजीद न तोड़ें, इनको ताने न दें। मेरे प्यारे रब, छोटे छोटे बच्चे, यतीमों के बच्चे जब नए साल में दाखिला लेते हैं, फटे हुए जूते, फटे हुए शॉक्स उनके पास होते हैं। अमीरों के बच्चे नए नए ड्रेस पहन कर आते हैं और छोटे बच्चों को हक़ारत की नज़र से देखते हैं, गरीबों के बच्चों को हक़ारत की नज़र से देखते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, अमीरों के दिल में रहम कर दीजिए। जब वो अपने बच्चों के ड्रेस बनवाएं तो ऐसे यतीम और मिस्कीन बच्चों की बनवाएं, ताकि कोई उनको नीची नज़र से न देखे, ताकि उनको कोई टॉर्चर न करे। अल्लाह, ऐसी शान और तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह, जब स्टेशनरी का खरीदने का मौका आता है, यतीम बच्चे पिछले साल पढ़े हुए बच्चों से साजबाज करते हैं, तुम्हारा कोर्स फीस हमें आधी कीमत में दे दो, तुम्हारी ज्योमेट्री बॉक्स आधी कीमत में हमें दे दो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम खर्च करके नया खरीद सकें। कई मरतबा वो दे देते हैं और कई मरतबा टका से जवाब देकर मना भी कर देते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, इस आसमान की छत के नीचे कैसे कैसे टूटे हुए दिल वाले यतीम और मिस्कीन रहते हैं। अल्लाह, सबकी किफायत आप ही करते हैं, लेकिन आप किसी न किसी इंसान को जरिया बनाते हैं। अल्लाह, हम भी तो इंसान हैं, हमारे हाथों को जरिया बना दीजिए, हमारे कलम और कदम को जरिया बना दीजिए। और प्यारे अल्लाह, माल किसी का हो, खर्च किसी पे हो रहा हो और हाथ हमारे हो और हमें सादतमंदी मिल जाए, अल्लाह ऐसी शान और तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, कि जाने वाले काफिलों में बहुत से बीमार भी हैं, बहुत से कमज़ोर भी हैं। अल्लाह, इस मुबारक सफ़र की बरकत से उनकी कमज़ोरी को दूर फरमा, उनको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, ज़ाहिरी और बातिनी हर तरह की बीमारी से शिफाए कामिल अता फरमा। अल्लाह जी, जो मांगे अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। अल्लाह जी, मांगना नहीं आता, भी मांगे अता फरमा, मांगने का ढंग और सलीका अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तुम वाइट शर्ट में यही लेना, खाली नीचे का मैं पोडियम पे लगा दूँ। तुम यहाँ साइड स्टेप आ जाओ, नीचे इधर आ जाओ। वो स्नैक्स दी है, जितने पासपोर्ट है उतने स्नैक्स ले। करीम खातून मैडम फ्रॉम मध्य प्रदेश। फ्रॉम मेहदीपट्टनम सर 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 ये सारे 10 नंबर 1 के लोग हैं। फरहाना बेगम फ्रॉम जोली चौकी, सैयदा जैदुन्निसा बेगम फ्रॉम अजमेरी आफरीन मैडम फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस, अकरवाम किड्स, मुर्शिदाबाद मुरादनगर, मुस्कान मैडम फ्रॉम मादनापेट, फ्रॉम आसिफ नगर डिग्री, रुबीना यास्मीन फ्रॉम मल्लापल्ली बॉयज, थोड़ा पीछे हटिए। मोहम्मद इरफान साहब कॉर्पोरेट ऑफिस,
97 yards. Right. office